Assalamu alaikum students. My name is Hera Shahid. I am your teacher of mathematics. Now come to your lecture number 31. In your lecture number 31 on your classwork copies, you have to do page number 41, question number 4, D and E part. And on your books, you have to do page number 40. Now come to your diary. On your homework copies, you have to do page number 41, part F and G. Topic of our lecture is fraction. Now come to the question, what is fraction? Fraction represent equal part of a whole or a collection. Fraction of a whole. What does fraction of a whole mean? When we divide a whole into equal parts, each part is a fraction of the whole. What does it mean? If it is a pizza and I have cut it into two equal parts, so what will be its fractions? And I have eaten the one part, so what will be the fraction? 1 by 2. So fraction of a whole mean divided it into equal parts. Now come to the example of fraction. Look at this. 1 by 5, 3 by 2, 6 by 7, 3 by 4. Okay students, now look at this. In this fraction, 1 is numerator and 5 is denominator. Look at this. In this fraction, what is denominator? 2 and 3 is the numerator. Very good. Now come to the topics we will discuss today. Like fraction, unlike fraction, equivalent fraction, lowest form, addition of fraction. Now, first of all, come to the like fraction. The fractions with the same denominator is called like fraction. Look at this. 1 by 4 and 5 by 4. So when the denominator of two fractions are same, both of them are like fractions. Now come to the unlike fractions. The fractions with different denominators are called unlike fractions. Look at this. 1 by 5 and 4 by 3. In these fractions, the denominators are different, so both of them are unlike fractions. Okay, now come to the equivalent fraction. What does equivalent fraction mean? Equivalent fraction have the same value even though they may look different. What does it mean? These fractions are really the same. Look at this example, 1 by 2. अगर हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन होगी, हम उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन या तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लुक एट दिस. 1 by 2 multiply by 3 multiply by 3. Answer is 3 by 6. So this is the equivalent fraction of 1 by 2. Look at this. If 16 by 12 divided by 2 divided by 2, so answer is 8 by 6. This is the equivalent fraction of 16 by 12. Equivalent fraction mean that they are same. Look at this. 1 by 2. अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1 by 2 और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 by 4. और अगर हम इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 by 8. सो ऑल ऑफ these are the equivalent fraction of each other. They may look different but they are same. Now come to the lowest form of fraction. What does lowest form of fraction mean? That
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, जब हम वहाँ तक इसको डिवाइड कर दें जहाँ पर इन दोनों का कोई एक कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। लुक एट दिस, इफ़ वी डिवाइड 24 बाय 16, तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किस एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि 24 4 के टेबल में आता है और 16 भी 4 के टेबल में आता है, तो हमने लोएस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है, 6 पर, और 16 कहाँ पर आता है, 4 पर। अब क्या ये इसकी लोएस्ट टर्म है, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 और 4 अभी भी किसी एक टेबल पे आते हैं। कौन से टेबल पे आते हैं, हरी अप, थिंक अबाउट इट। यस, 6 और 4 2 की टेबल में आते हैं। नाउ वी अगेन डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 3/2। अब आप लोगों ने देखना है कि क्या 3 और 2 किसी एक टेबल पे आते हैं, यस, नहीं आते, तो इट्स मीन दैट दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 24 and 16. It's okay. Now come to the last topic, addition of fractions. It's very easy. Now look at this example, 1/3 plus 1/4. Step number 1, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। आप लोग फर्स्ट करो कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/11 प्लस 6/11। सो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है। हम जल्दी से क्या करेंगे, 6 + 1 7, 7/11, हमारा आंसर आ जाएगा 7/11। लेकिन अब आप इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट। तो स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि क्या दोनों फ्रैक्शंस, या अगर आप 3 फ्रैक्शंस की एडिशन कर रहे हो, कि क्या तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं। अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, हरी अप, कौन मुझे बताएगा। हम लोगों ने पहले से ये पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमने क्या करना है, हरी अप। यस, हम लोगों ने 3 और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम। जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस की थी ना एलसीएम की, आप लोगों ने 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, मल्टीप्लाई बाय 4। हम लोगों ने देखना है कि हम लोग डिनोमिनेटर को 12 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 4 पर, और 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पर। नाउ लुक एट दिस, 4/12 प्लस 3/12. Now denominators are same, so we can add them. 4 plus 3, yes, 7/12. So answer is 7/12. जब भी आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस मिले, आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत जल्दी से आप लोगों ने ना उसको प्लस कर देना है उसके न्यूमिनेटर्स को। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और फिर आप लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, 3/9 प्लस 1/3। तो अब आप लोग देखो, इसमें 3 और 9 दोनों अलग किस्म के क्या हैं, डिनोमिनेटर, मतलब दोनों डिफरेंट हैं। तो अब हमने इनको सेम करने के लिए क्या किया, 9 और 3 का एलसीएम ले लिया। 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 9। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1, अब हम 9 को, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 के न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ताकि 9 बन जाए। नाउ द आंसर इज 3 + 3 डिवाइडेड बाय 9। 3 + 3 6/9। अब हम लोगों ने देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाली है, इसकी लोएस्ट टर्म, जो हम लोगों ने इसकी हमने पीछे प्रैक्टिस भी की है। 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, तो हमने इनकी लोएस्ट टर्म निकाल दी। 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर, और 9 कहाँ पर आता है, 3 पर। सो द आंसर इज 2/3. I hope all of you understand this.
अच्छा क्लास, आप लोग फर्ज करें कि आप लोगों को एक एग्जांपल दी जाती है, उसमें 3 फ्रैक्शंस होती हैं, लाइक 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। अब आप लोगों के पास इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं जिनको आपने ऐड करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो हम लोग को सब कुछ आता है। हम लोग जल्दी से क्विकली कैसे करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बताएं, हरी अप। यस, 8 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 4 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 को 8 बनाने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4। सो आगे हम लोग इन सब के आंसर्स निकालेंगे। 4 + 6 + 1, 11/8। 11/8 इज़ दी आंसर। सो जितनी मर्जी फ्रैक्शंस हों, आप लोगों ने एडिशन करने के लिए उनका क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। लुक एट दिस, 1/2 + 3/5, 1/3 सॉरी, प्लस 1/5। अब आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड किया था। लुक एट दिस, 2, 3 एंड 5। क्या ये तीनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं, तो हम लोग इनको सेपरेटली कर देंगे। 2 1s are 2 and 3 and 5 will come as it is. Now 3 1s are 3 and 5 will come as it is. 5 1s are 1। अब सबका क्या आ गया यहाँ पर, 1। So 2 multiplied by 3 multiplied by 5, 3 2s are 6, 6 multiplied by 5, 30। So the LCM is 30। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 2 को, 3 को और 5 को क्या बनाना है, 30। अब हम 2 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 15। जो आप लोगों ने नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही आप लोगों ने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। नाउ लुक एट दिस, 30। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3। अब हम लोगों ने 3 को 30 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरह 5 को 30 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। नाउ यू हैव टू पुट इक्वल टू, नाउ कम टू दिस, 15 1s are 15/30 प्लस 10 1s are 10/30 plus 6 1s are 6/30. Now look at this, all the denominators are same, which is 30. Now you can easily add them, 15 plus 10, 25। आप यहाँ पे देखो, इजीली आप लोग आराम से अपनी सारी कैलकुलेशंस करो, और देन यू हैव टू ऐड 6। सो द आंसर इज 31/30। दिस इज योर आंसर। I hope all of you understand this. Take care. Khuda Hafiz.